थैंक यू। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम भूषण है, मैं एक शराबी हूँ। हाय भूषण भाई। हाय एवरीबॉडी। अभी 10वां कदम अपना जारी है और उसके आखिरी 2 पन्ने बाकी है, तो मैं पूरा ही ये बचा हुआ जो पोर्शन है वो पढ़ लेता हूँ और वहां से शुरुआत करते हैं। तो पेज नंबर 93 पे है हम लोग, लास्ट पैराग्राफ। When evening comes, perhaps just before going to sleep, many of us draw up a balance sheet for the day. This is a good place to remember that inventory taking is not always done in red ink. It's a poor day indeed when we haven't done something right. As a matter of fact, the waking hours are usually well filled with things that are constructive, good intentions, good thoughts, and good acts are there for us to see. Even when we have tried hard and failed, we may chalk that up as one of the greatest credits of all. Under these conditions, the pains of failure are converted into assets. Out of them, we receive the stimulation we need to go forward. Someone who knew what he was talking about once remarked that pain was the touchstone of all spiritual progress. How heartily we heirs can agree with him. For we know that the pains of drinking had to come before sobriety, and emotional turmoil before serenity. As we glance down the debit side of the day's ledger, we should carefully examine our motives in each thought or act that appears to be wrong. In most cases, our motives won't be hard to see and understand. When prideful, angry, jealous, anxious, or fearful, we acted accordingly. And that was that. Here, we need only recognize that we did act or think badly. Try to visualize how we might have done better and resolve with God's help to carry these lessons over into tomorrow meeting. Of course, any amends still neglected. But in other instances, only the closest scrutiny will reveal what our true motives were. There are cases where our ancient enemy, rationalization, has stepped in and has justified conduct which was really wrong. The temptation here is to imagine that we had good motives and reasons when we really didn't. We constructively criticize someone who needed it when our real motive was to win a useless argument. Or the person concerned not being present, we thought we were helping others to understand him, when in actuality, our true motive was to feel superior by pulling him down. We sometimes hurt those we love because they need to be taught a lesson when we really want to punish them. We were depressed and complained we felt bad, when in fact, we were mainly asking for sympathy and attention. This odd trait of mind and emotion, this perverse wish to hide a bad motive underneath a good one, permeates human affairs from top to bottom. This subtle and elusive kind of self-righteousness can underline the smallest act or thought. Learning daily to spot, admit, and correct these flaws is the essence of character building and good living. An honest regret for harms done, a genuine gratitude for blessings received, and a willingness to try for better things tomorrow will be the permanent assets we shall see. Having so considered our day, not omitting to take due note of things well done, and having searched our hearts with neither fear nor favor, we can truly thank God for the blessings we have received and sleep in good conscience. थैंक यू भूषण। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हालांकि आज का दिन शराब से पहले मुझसे दूर हूँ। आखिरी के जो भूषण ने अभी पैरास पढ़े हैं उसमें अब शुरू हो रही है शाम को। तो शाम को सोने से ठीक पहले, मतलब हम में से कई लोग अपने दिन का लेखा जोखा यानी कि इन्वेंट्री की तरफ नजर डालते हैं। ऐसे में क्या याद रखना जरूरी है? बिल हमें समझाता है कि इन्वेंट्री का मतलब केवल गलतियों की सूची नहीं है। हर दिन कुछ अच्छा भी होता है
अच्छे विचार, अच्छे इरादे या छोटे अच्छे कर्म, ये सब हमारे खाते की क्रेडिट की बात है, क्रेडिट की तरफ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हमने पूरी कोशिश की और असफल हुए तो वह भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि असफलता हमें सिखाती है। इस प्रकार विफलता का दर्द हमारे लिए आध्यात्मिक पूंजी बन जाता है। बिल यहाँ एक ज्ञानी का उदाहरण देता है कि दर्द की हर आध्यात्मिक प्रगति की कसौटी, दर्द ही हर आध्यात्मिक प्रगति की कसौटी, यानी कि किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति के पहले पेन होना, पुराने विचारों को छोड़ना, वो स्वाभाविक है। और हम ये के लोग इसे भली भांति समझते हैं, क्योंकि पीने का दर्द हमें सोब्राइटी की ओर और भावनात्मक उथल पुथल हमें शांति की ओर ले जाती है। अगले पैरा में जब हम अपने दिन के डेबिट साइड देखते हैं, जहां गलतियां या कमी रही है, हमें अपने उद्देश्यों को ध्यान से देखना चाहिए, मोटिव्स को चेक करना चाहिए। अक्सर ये देखना होता है कि अगर हमने अहंकार से, गुस्से से, ईर्ष्या से, चिंता या डर से प्रेरित होकर कार्य किया, तो उसी के अनुसार, हमारे मोटिव के अनुसार ही व्यवहार हुआ, बस इतना ही। यहाँ हमें इतना ही करना है कि अपनी गलती स्वीकारना, सोचना कि हम और बेहतर क्या कर सकते थे, और ईश्वर की सहायता से निश्चय करना कि कल हम सुधार लाएंगे। यदि कोई क्षमा या सुधार बाकी है तो उसे पूरा करेंगे। तो बिल यहाँ पे हमें ये बताता है कि अगर हम डेली इन्वेंट्री में कहीं पे अहंकार, गुस्सा, चिंता या डर, जैसे विनायक बोलता था सिंफुल, शेमफुल, बैड, से प्रेरित होकर कोई कार्य किया, तो हम रात को क्या करेंगे? फिर किसी को दोष देंगे या क्या करेंगे? बिल कहता है कि हमें बस इतना ही करना है कि अपनी गलती स्वीकारना, सोचना कि हम और बेहतर क्या कर सकते थे, और ईश्वर की सहायता से निश्चय करना कि कल हम सुधार लाएंगे। दैट्स इट। मुझे इसके ऊपर एक याद आया, भूषण, विनायक मेरे को बोलता था कि अगर तूने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो रात को इन्वेंट्री में अगर वो लाइन तेरे को आती है ना, तो सोचना कि ये इससे बेहतर लाइन और क्या हो सकती थी। मतलब बिना किसी को तकलीफ दिए तू अपनी बात कैसे कह सकता था? तुझे टोन मारने की जरूरत नहीं पड़ती, तुझे गुस्सा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बात वही तू कह सकता था। तो कई बार मेरी जिंदगी में मैंने वो सेंटेंसेस, वो दिन के रिप्लेस किए हैं, वो एक्शन रिप्लेस किए हैं, भले काल्पनिक ही सही, लेकिन यहाँ पे ये एक बड़ा अति महत्वपूर्ण चीज है। भूषण इस पे इलाबोरेट करेगा। इसके आगे लिखता है, कुछ मामलों में हमारे असली उद्देश्य तुरंत नहीं दिखते। सीधे सीधे उद्देश्य तो दिख जाते हैं, गुस्सा आया, चिढ़ हो गई किसी पे, कहीं पे चिंता, कहीं पे डर लग गया, ये तो दिख जाता है। लेकिन यहाँ कहता है हमारे भीतर का एक शत्रु है, यानी कि रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन यानी कि मैं उसको छोटा देख करके देखता हूँ, मिनिमाइज करके देखता हूँ, उसको तर्क से छोटा करने की कोशिश करता हूँ, उसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। हम रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम गलत आचरण को सही ठहराने लग जाते हैं। गलत था लेकिन इतना भी गलत नहीं था, सही था ना यार। हम यह सोचते कि हमारे इरादे अच्छे थे, जबकि सच्चाई में हम स्वयं को धोखा दे रहे होते। यह स्टेप 10 का एक गहरा हिस्सा है, अपने भीतर की चालाकी को पहचानना और स्वीकारना। इसके आगे लिखता है, जहां पे कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज। कभी कभी हम कहते हैं हमने किसी की रचनात्मक आलोचना की, यानी कि आलोचना की लेकिन उसके भले के लिए की, इसके लिए रचनात्मक की, पर वास्तव में हमारा उद्देश्य कोई यूजलेस सी बहस को जीतना था। कभी कभी हम किसी अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि गॉसिप करने लग पड़ते हैं कि हम दूसरों को समझा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम उसे नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करना चाहते थे। बिल यहाँ पे ये कहता है कि कई बार बातचीत में हम एक तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जहां वहां उपस्थित नहीं होता है, और हम उसको नीचा दिखाने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को ऊंचा महसूस कराना चाहते हैं औरों के सामने। कभी कभी हम अपने प्रियजनों को सबक सिखाने के नाम पर चोट पहुंचाते हैं। बच्चे ने गलती कर ली, पत्नी ने गलती कर ली,
अब सबक तो सिखाना पड़ेगा, और वो सबक सिखाने के लिए हम अच्छे के लिए अभी चोट पहुंचाने की बात करते हैं। बिल यहाँ पे लिखता है कि जब हम सबक सिखाने की बात करते हैं तो असली में हम उन्हें दंड देना चाहते थे, किसी बात की सजा देना चाहते थे, लेकिन हमने उस सजा को मुखौटा क्या दिया? अरे गलती हुई है, सिखाना तो पड़ेगा ना, उसको नाम सिखाना दे दिया। और कभी हम कहते कि मैं बहुत उदास हूं, पर वास्तव में हम सहानुभूति चाहते हैं, सिंपैथी चाहते हैं। हमारा पुराना स्वभाव अप्रिसिएशन, सिंपैथी सीकिंग का दोष। यह मानव स्वभाव की एक विचित्र प्रवृत्ति है कि बुरे उद्देश्य को अच्छे बहानों में छिपाने की। ये छिपी हुई आत्मधर्मिता, सेल्फ राइटियसनेस, हमारे हर विचार और कार्य में प्रवेश कर सकती है। यानी कि जो भी हम मुखौटे पहनते हैं, जबकि सच में हमारे उद्देश्य कुछ और होते हैं, लेकिन हम उनको कोई और नाम दे देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, उनको उचित ठहराने के लिए, जायज ठहराने के लिए कोई और नाम के तहत वो कांड कर जाते हैं। लेकिन बिल कहता है इनकी तरफ ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये छिपे हुए मोटिव हैं। और अगले पैरा में हर दिन अपने इन दोषों को पहचानना, स्वीकारना और सुधारना, यही है चरित्र निर्माण और सार्थक लिविंग, गुड लिविंग का मूल। बिल यहाँ पे बहुत एक बेहतरीन बात हमें बता रहा है कि 10वें कदम से हमें मिलेगा क्या। 10वां कदम, लर्निंग डेली टू स्पॉट, यानी कि हर दिन अपने दोषों को पहचानना, स्वीकारना और सुधारना, यही है चरित्र निर्माण। यानी कि हम जो बोलते थे ना, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, तो वो नया व्यक्तिमत्व कहाँ से आएगा? नया व्यक्तिमत्व इस प्रैक्टिस से आएगा, उसका चरित्र बनता है यहाँ पे। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप, प्राप्त आशीर्वादों के लिए या अच्छाइयों के लिए कृतज्ञता दिखाना, और कल बेहतर करने की सच्ची इच्छा रखना। आज गलती हो गई है, इन्वेंट्री में आ गई है, उसकी मैंने स्पॉट में माफी भी मांग ली थी, लेकिन फिर भी अभी आ गई है, लकी तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो कल जब ऐसा मौका आएगा तो मैं सजग रहूंगा। बिल कहता है, वापस से दोहराता हूं, सच्चे मन से किया गया पश्चाताप, प्राप्त आशीर्वादों के लिए व्यक्त की हुई कृतज्ञता, और कल बेहतर करने की एक ईमानदार इच्छा, ये 3 गुण हमारी स्थायी आध्यात्मिक संपत्ति बनते हैं। तो अगर कल को कोई पूछे कि आध्यात्मिक संपत्ति क्या है, तो ये 3 लाइनें बिल ने हमको बताई हुई हैं। और लास्ट में बिल कहता है कि जब हम पूरे दिन की समीक्षा ईमानदारी और निष्पक्षता से कर लेते हैं, अपनी गलतियां भी देखते हैं और अपने अच्छे कार्यों को भी याद रखते हैं, तो हम ईश्वर को सच्चे मन से धन्यवाद दे सकते हैं, और तब हम निर्भय, शांत और संतुष्टि के साथ सो सकते हैं। तो ये एक 10वें कदम का बिल ने जो अंग्रेजी में बताया है, उसका कुछ खुलासा मैंने, ट्रांसलेशन तो नहीं, खुलासा किया। ओवर टू यू भूषण। थैंक यू लकी, बहुत अच्छे ढंग से खुलासा किया है। तो मैं इसको पूरे स्टेप 10 को, जो भी हमारे साथ में नए से जुड़े हुए भाई होंगे, उनके लिए थोड़ा सा एक समराइज करने का प्रयास करता हूं कि हम लोगों ने अभी तक 10 कदम हमने पढ़े हुए हैं। पहले जो 3 कदम थे वो लार्जली हमारे शराब की वजह से हुए अस्त व्यस्त और तहस नहस जो जिंदगी हुई, वहां से हमने हमारी मान्य कर लिया कि ये हमारे से उलझने वाला नहीं है, और हमने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को उच्च शक्ति मान लिया, और उसके सहारे, उसी कार्यक्रम के सहारे हमने जीना शुरू कर दिया। तो एडमिटेंस से लेके एक्सेप्टेंस वाला जो जर्नी था वो स्टेप 1, 2, 3 में हुआ। स्टेप 4, 5, 6, 7 ये एनालिसिस की स्टेप्स थी, जिसमें हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि मेरे जो ये विकृतियां आई है, ये कभी से आई, कैसे आई। मैं भी तो एक आम बच्चा था, सुसंस्कृत लोगों के बीच में, अच्छा पढ़ा लिखा, माँ बाप ने अच्छा संगोपन किया हुआ, फिर मैं बहका कैसे, कब, कितना, क्यों।
ये सभी जो हम लोगों ने एक अभ्यास किया और हमारे स्पॉन्सर के साथ में एक दूसरे व्यक्ति की साक्षी रखते हुए हमने अपनी सतसत विवेक और बुद्धि को तैयार करने का प्रयास किया, क्योंकि जब भी हमने स्पॉन्सर की सतसत विवेक बुद्धि और हमारे अंदर की सतसत विवेक बुद्धि इनका मेल बनाते हुए हमने जब ईश्वर हमसे क्या चाहता होगा इस विचार को मन में रखते हुए हमने 5वां कदम लिया। फिर आई बात हमारे समझ में कि भाई हम जो सोच रहे थे कि शराब ने हमारी गड़बड़ की है, तो सिर्फ शराब ने गड़बड़ नहीं की है, बल्कि शराब के पीछे हमारे अंदर, हमारे विचारों में, हमारे बिहेवियर में बहुत सारी विकृतियां थी। तो बिल कहता है दिस स्टेप सेपरेट्स द मैन फ्रॉम द बॉयज। 6-7वें कदम में हमने रियली स्पीकिंग हमारे साथ में हमारे विचारों की विकृति, हमारे जो डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर बिल डब्ल्यू कहता है, उनको जानने का, उनको समझने का प्रयास किया और पूरी नम्रता के साथ में ईश्वर की मदद से, उच्च शक्ति की मदद से ये हमारे विकृतियों से बचने का हमने प्रयास किया। फिर आता है हमारा 8th और 9th स्टेप, जहां हमने सोशल रिहेबिलिटेशन की। चलो ठीक है, समझ में तो आ गया हमने क्या क्या गड़बड़ की, समझ में तो आया क्यों गड़बड़ की, समझ में तो आया कैसे गड़बड़ की, लेकिन जिन लोगों को इसकी तकलीफ हुई उनके साथ में जब तक अमेंड्स नहीं होती है, नुकसान भरपाई जब तक नहीं होती है, तब तक मैं समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति करके जी नहीं पाऊंगा। लोगों के डर मेरे मन में हमेशा दबे हुए रहेंगे। मैं हमेशा कुछ लोगों को अवॉइड करने का, कुछ लोगों को खुश करने का, कुछ लोगों को अपने आप की तरफ मोड़ने का प्रयास करते रह जाऊंगा। मेरी रिलेशनशिप ये न्यूट्रल और नॉर्मल नहीं होंगी। तो 8वें 9वें में हमने यादी बनाई और स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से हमने उनके साथ में अमेंड्स की। पहले हल्की फुल्की और फिर बढ़ते 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 जो सीरियस अमेंड्स थी वो की, और जिंदगी भर कुछ अमेंड्स जो है जिनकी हमारी चलते रहेगी, यानी पूरी तरह से नुकसान भरपाई हम कभी कुछ ही रिश्तों में नहीं कर पाएंगे, तो उसका हम प्रयास करते रहेंगे। अब नेचुरली हम अपने पुराने जो हमने जिंदगी और हमारे रिश्तों को और हमारी सेहत को और हमारी आध्यात्मिकता को जो तहस नहस कर दिया था, उसके ऊपर अभी हम लोगों ने संतुलन पा लिया है। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि दोबारा हमसे वो गलतियां ना हो। इसके लिए 10वें कदम में बिल डब्ल्यू कहते हैं कि अगर मैं दैनिक चिंतन या मनन करता हूं, रोजाना अलग अलग प्रकार से अपने आप को साक्षी भाव में जाकर अपने आप को ही देखता हूं, तो मुझे दिखाई देगा कि मेरे अंदर इमोशनल उथल पुथल अभी भी होती है, मेरे अंदर अभी भी डर आता है, गुस्सा आता है, मैं इंस्टिंक्टिवली, इम्पल्सिवली कुछ चीजें ऐसी कर जाता हूं जो मुझे इमीडिएटली समझ में भी आती है कि ये नहीं होनी चाहिए। तो 10वें कदम में बिल डब्ल्यू ने अलग अलग प्रकार, जिस प्रकार से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, ये बहकने से या पुराने जैसे हम लोगों ने सब संबंधों को खराब करने तक जो बहक गए, क्योंकि टाइमली हमने इलाज नहीं किया था, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की इन्वेंटरी के टेक्निक्स हमने सीखे समझे। और उसके अंत में उसमें स्पॉट इन्वेंटरी का जिक्र किया, स्पॉन्सर के साथ में पीरियोडिक इंटरव्यू लेते, पीरियोडिकली हम लोग इन्वेंटरी लेते, उसका जिक्र किया। कभी 6 महीने में, सालाना हम लोग जब भी अपनी इन्वेंटरी लेते हैं कि कैसे चल रहा है, मैं सही ढंग से चल रहा हूं कि नहीं, वो देखते, उसका जिक्र किया। और फिर अभी वो अंतिम चरण में बात कर रहा है कि हर रोज रात को सोने से पहले जो हम लोग इन्वेंटरी लेते हैं कि आज का दिन कैसे गया। तो बिल डब्ल्यू कहता है कि सुबह उठते हुए तो हम हमेशा अच्छे विचारों से ही प्रेरित होते हैं, हम अच्छे से ही जीना चाहते हैं, हमारा दिन की शुरुआत भी प्रार्थना से ही होती है, और हम चाहते हैं कि हम एक सच्चाई से, मेहनत से एक अच्छा दिन बिता सके। लेकिन हमारे अंदर की जो मैल एडजस्टमेंट है, इमोशनल मैल एडजस्टमेंट है, जिसके वजह से हमारे जो रिश्ते, तो 3 प्रकार के रिश्तों में गड़बड़ी बिल कहता है कि सबसे पहले कुछ लोगों के ऊपर हम लोग दिलो जान से प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं, काबू में रखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं
जो हम न्यूट्रल है, जिनके प्रति हमारे मन में कोई कीमत ही नहीं है, वो है या नहीं है हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग पॉजिटिवली हेट करते हैं, जिनको देख के हमको तकलीफ होती है, या जिनको देख के हमको गुस्सा आता है, जिसको देख के हमको इनको अवॉइड करने का दिल करता है। तो ये 3 प्रकार के व्यक्ति सामने आते रहेंगे और हमारे मन के अंदर इमोशनल उथल पुथल होते रहेगी। तो वो उथल पुथल में से बचने के लिए पिछले वाले पैराग्राफ्स में बिल डब्ल्यू ने कुछ हमें सॉल्यूशंस दिए हैं। जैसे जिनको हम लोग दिलो जान से प्यार करते हैं, उनसे हम लोग अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करें, हम लोग उनको फ्रीडम दे, उनको भी मुक्तता दे, उनको कंट्रोल करना छोड़ दे, और उनसे मतलब जो हमारा कंटिन्यूअस जो उनका मॉनिटरिंग होता है उससे बचे। जो लोगों के बारे में हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है, उनको कभी इज्जत नहीं दी, उन लोगों को जस्टिस और कर्टेसी के साथ में, काइंडनेस के साथ में हम लोग ट्रीट करें। और जो लोगों को हम लोग नफरत करते हैं, हम लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाकर देखते हैं कि लोग मेरे साथ जैसा बिहेव करें ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं, वैसा मैं उनके साथ में बिहेव करता हूं क्या। तो अगर मेरे अंदर कुछ गुस्से की वजह है या किसी को नापसंद करने का कारण है, तो उसको मैं सही मामले में एनालाइज करके उससे विमुक्त हो सकता हूं क्या, मुक्त हो सकता हूं क्या। तो ये इमोशनल जो उथल पुथल है उसे रोकने के लिए ये तरीका उन्होंने बताया है। फिर भी इसके बावजूद, ये सब चीजें करने के बावजूद, दिन के अंत में जब भी हम लोग बैठते हैं और जब भी हमारे आंखों के सामने से पूरा दिन चला जाता है, तो हमें दिखाई देता है कि कितना भी अच्छा इरादा हो, कितना भी नेक इरादा हो, हमारे से कुछ गलतियां होती है। लेकिन बिल कहता है कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहेगी, हम कोई संत महात्मा तो है नहीं। भले हम प्रयास कर रहे हैं अच्छा सा अच्छा जीवन करने का, लेकिन ये जो गलतियां होती है उनका एहसास और उनकी करेक्शन करने की इच्छा और जागरूक होकर अपने आप में ये दोबारा ये क्यों आ रहा है, इसका किया हुआ जो शोध है, ये लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर समझ लो आपके जिंदगी में बुरा वक्त आया ही नहीं, तो आपको अच्छे वक्त की कीमत कैसे समझेंगे। मुझे याद है, इस बात को थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं। कुछ साल पहले मैं एक एरिया में रिलेशनशिप्स इस विषय के ऊपर बात करने के लिए गया था, और वो काफी लंबा चौड़ा 1 घंटे का शेयरिंग होने के बाद में कुछ चंद नए सदस्य मेरे साथ मिलने को आए, और उसमें से एक सदस्य ने मेरे साथ में बात की कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी एक बीवी घर में होते हुए मेरी अभी दूसरी गर्लफ्रेंड है, और जिसके साथ में मैं अभी शादी करने जा रहा हूं, और उससे मेरी पहली बीवी भी नाखुश है, और जिसको मैं शादी बनाने का प्रॉमिस कर रहा हूँ उसको भी मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ी हुई है कि पीछे वाले को छोड़। अब इसमें मैं बड़ा परेशान हो गया और मेरा कार्यक्रम में ध्यान नहीं रखता है। अब जब भी मैंने उसका ये बात सुना तो मुझे ऐसे लगा, यार ये क्या आदमी है, मतलब घर में एक है, दूसरी को लाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, तीसरा कुछ और गड़बड़ी चालू है, इसका कुछ कैरेक्टर है कि नहीं। क्योंकि मैंने वो टाइप का एक्सपीरियंस नहीं लिया था, इसके लिए वो किस हालात में जा रहा है वो समझने की मेरे में पात्रता नहीं थी। मैंने जजमेंट पास कर दिया, मैंने उसको बोल दिया कि अपनी नैतिकता का अपने आप को ही प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर मैं नैतिकता से ढल जाऊंगा तो मुझे उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसा कुछ तो भी मैं फिलोसॉफिकल डायलॉग मार के तो हट गया वहां से। लेकिन दोस्तों, जब भी मेरे ऊपर इसी प्रकार की स्थिति आई, तभी मुझे याद आया कि ये व्यक्ति जिसको मैंने एकदम हल्के में उड़ा दिया था, वो मेरे साथ में उसकी गहन एक अंदर की दर्द भरी बात मेरे साथ करना चाहता था। लेकिन जब तक मेरे को उस बात का अनुभव नहीं आया था, तब तक वो बात को मैं समझने के काबिल नहीं था। तो कई बार ऐसे होता है कि जब भी दिन भर में हम लोग, हमारे को अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीजें हमारे पास से हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमको उसका पहले अनुभव था नहीं, इसलिए हम लोग इंस्टिंक्टिवली वहां पर कुछ बोल देते हैं, इंस्टिंक्टिवली कुछ हमारे हाथों से हो जाता है। लेकिन
जैसे हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो खो देते हम लोग, जैसे हमारी सेरेनिटी या मन की शांतता हम खो देते, तो हमको झट से समझ में आता है यार मैंने ये गड़बड़ कर दी, मैंने ये बोलना नहीं चाहिए था, मैंने ये करना नहीं चाहिए था। ये झट से समझ में आ जाता है। और वो समझ आने में वो जो लायबिलिटी थी वो एसेट बन गई, क्योंकि अभी मुझे उसकी अनुभूति हो गई। अब ये अनुभव से मैं और सयाना बन गया। नेक्स्ट टाइम जब इस प्रकार की बात होगी तो मेरी जो हरकत है वो अभी इस प्रकार से नहीं होगी। अभी मेरी हरकत जो है अगर होगी भी इस प्रकार से तो भी उतनी तीव्रता से नहीं आएगी। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि हमारा दिन हमेशा कभी भी हम लोग अगर खाली बुराई के पास देखेंगे तो हम कोई इतने भी बुरे इंसान नहीं है कि दिन भर बुराई 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 करते रहे। अभी तो हम सोबर हो गए, हमारा रेस्टिट्यूशन हो गया है, हमारा अमेंड्स हो चुका है, हम अपने आप की नम्रता ला चुके हैं। अब जो भी होना है वो अच्छा ही होना है, तो हमारा दिन जो है वो अच्छा ही होगा। लेकिन कभी ना कभी हमारा प्राइड, हमारा एंगर, जेलसी, एंजाइटी और फियर, ये जो चीजें हमारे अंदर जो है वो हर जीव में है, हर मनुष्य में है। ये जब जाग जाएगी तो हमारे जो इन्वेंट्री जो है, जो बिल डब्ल्यू कहता है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट यानी जो हमारे से गलतियां हुई, जैसे आप अगर बिजनेसमैन हो तो आप जानते हो कि जब भी आपका लॉस होता है तो वो फिगर रेड में लिखी जाती है। वहां पर जो जिक्र किया है कि रेड यानी कि जो डेबिट यानी कि रॉन्ग जो हुआ है, वो चीजों के मेन जो कारण है वो मेरा अभिमान, मेरा ईगो, मेरा गुस्सा, मेरी जलन, मेरे अंदर की परेशानी, डर, या मुझे जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं, उसकी एंजाइटी, इन चीजों की वजह से ही निकलेगी। तो अगर तुम ये 5 को सामने लिखोगे और अपने इन्वेंट्री में अगर नाप कर देखोगे तो जो भी निगेटिव आपके हाथ से हुआ है वो इन्हीं 5 में बैठेगा, और जो भी पॉजिटिव आपका हुआ है वो आपकी क्रेडिट साइड है। आपकी जो आज के दिन का जो आप नफा नुकसान जो हुआ, उसका जो नफा है वो आपकी पॉजिटिव हरकतें है। या जब भी आपने इन 5 दुर्गुणों के ऊपर मात किया है तो वो आपका एसेट है, वो आपका नफा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, बारकाई से अगर देखोगे, तो बिल डब्ल्यू कहता है कि भगवान आपके लिए हमेशा नई नई टेस्ट भेजेगा, अलग अलग परीक्षा आपकी लेगा। और ये जो परीक्षा में से जब भी आप फेल होगे तो आप फेल नहीं हो रहे हो, आप सीख रहे हो। सो वो बोलता है कि विद गॉड्स हेल्प टू कैरी दीज लेसन्स ओवर इनटू टुमारो, मेकिंग ऑफ कोर्स एनी अमेंड्स। यानी कि ये जो मौका जो भगवान ने आपको दिया हुआ है वो समझने के लिए कि अभी भी आपके अंदर वो किंतु परंतु बाकी है, उसे जानना, उसको पहचानना और उसको करेक्ट करना, उसकी जो अमेंड है वो अमेंड कर देना, ताकि आपका कल जो है वो बेहतर हो सके। और वो कहता है कि जब भी आप इनके पीछे के मूल हेतु देखोगे, कई बार हमको ऐसे लगता है कि अभी मेरा सब अच्छा चल रहा है, मेरा सब ठीक चल रहा है, तो लेकिन हम जाने अनजाने में कुछ चीजें करते रहते हैं। अभी लकी ने हिंदी में बहुत खूबसूरती से पढ़ा, तो मैं उसको दोबारा नहीं बोलूंगा। लेकिन जब भी मेरा फोकस मेरे खुद के करेक्शन के ऊपर से लोगों के ऊपर चला जाता है कि मुझे उसको सिखाना है, उसको डिसिप्लिन करना है, या उसने कैसे गलत किया वो मुझे लोगों को समझाना है, ये जब भी मेरे करेक्शन के ऊपर से मेरा फोकस दूसरों की करेक्शन के ऊपर चला जाता है तो मेरे अंदर से ह्यूमिलिटी चली जाती है और अगेन मेरे अंदर निगेटिविटी दोबारा निर्माण हो जाती है। सो हमेशा स्पॉट, एडमिट एंड करेक्ट। तो ये जब भी अपने हाथ से होता है कि मैं इन्वेंटरी दूसरे की ले रहा हूं क्या, मेरी बीवी कैसे गलत है ये देख रहा हूं क्या, मेरा बॉस ने कैसे गलत किया वो देख रहा हूं क्या, मेरा जूनियर ने क्या किया वो देख रहा हूं क्या। तो अगर मैं दूसरों की इन्वेंटरी ले रहा हूं, स्पॉट इट एंड करेक्ट इट। तो फर्स्ट स्पॉट इट, देन एडमिट इट एंड देन करेक्ट इट। तो ये 3 गुणों का मंत्र दिया है कि जब भी मेरे अंदर ये
साक्षी भाव में से मैं दोबारा कर्ता भाव में चला जाता हूँ, और मेरा रैशनलाइजेशन यानी कि यार चलता है यार, दुनिया में रहना तो थोड़ा बहुत उल्टा सुल्टा तो करना पड़ता है। अभी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ तो थोड़ा सा अंडर द टेबल पैसा खाऊंगा तो चलता है, मैं नहीं खाऊंगा तो बाकी लोग मुझे ये कर देंगे। सो एनी कॉम्प्रोमाइज दैट यू डू विथ योर ओन स्पिरिचुअल कंडीशन, आपके खुद के आध्यात्मिकता के साथ में आप किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करोगे और आप साक्षी भाव में से कर्ता भाव में चले जाओगे तो आपके हाथ से ये गलतियां होगी। तो होगी तो कोई बात नहीं है, स्पॉट इट, जान लीजिए, उसको मान लीजिए और उसको ठीक कर दीजिए। और ये अगर आप करते रहेंगे तो आप जैसे बिल्लू कहता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग के एक अच्छा आदमी, एक आदरणीय व्यक्तिमत्व जो बनता है वो व्यक्ति होता है जो सतर्क होता है, जो अपने आप से कभी गलतियां करता नहीं है और दूसरों ने की हुई गलतियों का बार बार जिक्र करता नहीं है, बल्कि सही जीने का मार्ग क्या है वो खुद जी के दिखाता है। अगर इस प्रकार से आप अगर जीना शुरू करोगे तो बिल डब्ल्यू कहता है कि अगर अपने अंदर हृदय में जाकर आप जाको देखोगे तो यू विल नेवर फाइंड फियर नॉर फेवर, यानी आपको डर भी नहीं दिखाई देगा और किसी को कंट्रोल करने का भाव भी नहीं दिखाई देगा, और आप एकदम शांत चित्त से, स्थिर चित्त से भगवान का शुक्रिया, उसने जो कुछ भी आपको दिया हुआ है, भर भर के जो दिया हुआ है, आज का जो चित्त शांति वाला जो दिन आपको दिया हुआ है, उसके बारे में आपका आभार से भरा हुआ मन होगा और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, कॉन्शियंस की, यानी सत विवेक बुद्धि से मिली हुई शांतता से प्रेरित एक शांत नींद आपको प्राप्त होगी। सो स्टेप 10 का जो महत्व जो BW कहता है, दैट इज टू फिक्स, अगर मेरे अंदर इमोशनल कोई भी अपहीवल हो रहा है तो उसे इमीडिएटली स्पॉट करो, एडमिट करो और करेक्ट करो, यानी कि आपका मन एक निरल वो पानी की तरह एकदम नीरव शांतता के साथ में आप जीना सीख लोगे। तो यहाँ पर हमारा 10वां कदम खत्म होता है, और मेरा स्पॉन्सर हमेशा कहता था कि जब तक तेरे मन में ये नीरव शांतता नहीं आएगी तब तक तू मेडिटेशन क्या कर लेगा। अगर तेरा मन शांत ही नहीं है, तेरे आंख बंद होने के बाद में अगर तेरे को अलग अलग कैलिडोस्कोप ऑफ इमेजेस अगर तेरे सामने चल रहा है तो शांतता कहाँ से होगी। और अगर मन में शांतता नहीं होगी तो प्रार्थना करने के लिए तेरे से होगा ही नहीं। सो चलो अगले कदम की तरफ मुड़ते हैं, स्टेप 11। भूषण, आई विल रीड स्टेप 11 और ओके साथ में इंग्लिश और हिंदी कर लेता हूँ मैं। ओके ओके। वाइल भूषण ने बड़ा सुंदर ढंग से इसको समाप्त किया है और हम वक्ता श्रोता सभी लोग इस बात का एहसास कर रहे हैं कि 10वां कदम कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और मैं वही देख रहा था कि 12/12 में जब बिल ने ये सब ऐसे लिखे हैं, ये सब व्याख्यान लिखे हैं उसने, तो स्टेप 1 को 7 पेजेस दिए, स्टेप 2 को लगभग 6-7 दिए, स्टेप 3 को दिए, स्टेप 4 को 12 पेजेस दिए थे। इन्वेंट्री का स्टेप था वो, 5वां 6वां 7वां सब 6-7 पेजेस का था। स्टेप 9 10 पेजेस का था और स्टेप 10 जो था ये लगभग 8 पन्नों का था। अभी स्टेप 11 की तरफ चल रहे हैं, जिसको बिल कहता है कि ग्रोथ का कदम, ग्रोथ का स्टेप है। ये 11 पेजेस का है और आखिरी जो स्टेप 12 है वो लगभग 19 पेजेस का है। तो अभी जैसे हम ये 12/12 में आखिरी के 2 स्टेप्स पे आ रहे हैं तो पन्नों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, खुलासे भी काफी होंगे और दिशा भी काफी मिलेगी, हम सभी को दिशा मिलेगी। बिल को किसी ने पूछा था कि शराब से दूर हो गया मैं, इन्वेंट्री भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अब क्या क्या करता जाऊंगा, मेरी ग्रोथ कैसे है, ग्रोथ कहां से होगी। तो बिल ने कहा था कि ग्रोथ का स्टेप तो स्टेप 11। मैं स्टेप 11 पढ़ता हूं। स्टेप 11, सॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन
to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out. Prayer and meditation are our principal means of conscious contact with God. We A's are active folk, enjoying the satisfactions of dealing with the realities of life, usually for the first time in our lives, and strenuously trying to help the next alcoholic who comes along. So it isn't surprising that we often tend to slight serious meditation and prayer as something not really necessary. To be sure, we feel it is something that might help us to meet an occasional emergency, but at first, many of us are apt to regard it as somewhat mysterious skill of clergymen, from which we may hope to get a second-hand benefit, or perhaps we don't believe in these things at all. To certain newcomers and to those one-time agnostics who still cling to the A group as their higher power, claims for the power of prayer may, despite all the logic and experience in proof of it, still be unconvincing or quite objectionable. Those of us who once felt this way can certainly understand and sympathize. We well remember how something deep inside us kept rebelling against the idea of bowing before any god. Many of us had strong logic too, which proved there was no god whatever. What about all the accidents, sickness, cruelty, and injustice in the world? What about those unhappy lives which were the direct result of unfortunate birth and uncontrollable circumstances? Surely there could be no justice in this scheme of things and therefore no God at all. ये पहले 4 पैराग्राफ मैंने अंग्रेजी में पढ़े हैं और इसका संक्षेप में हिंदी खुलासा ऐसा है कि हमने प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से अपनी ईश्वर जैसा हमने समझा है से जागरूक संपर्क बनाने की कोशिश की, सुधारने का प्रयत्न किया। लेकिन मेरे ख्याल से आप और एक पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये जो मन में जो संदेह है प्रेयर की जरूरत का, तो वो भी चौथे में भी वही कंटिन्यूएशन है, तो वो पूरे का फिर सारांश एक साथ निकलेगा। ग्रेट। Sometimes we took a slightly different tack. Sure, we said to ourselves, the hen probably did come before the egg. No doubt the universe had a first cause of some sort. The god of the atom may be hot and cold by turns, but certainly there wasn't any evidence of a god who knew or cared about human beings. We liked A all right, and we were quick to say that it had done miracles. But we recoiled from meditation and prayer as obstinately as the scientist who refused to perform a certain experiment lest it prove his pet theory wrong. Of course, we finally did experiment, and when unexpected results followed, we felt different. In fact, we knew different, and so we were sold on the meditation and prayer. And that we have found can happen to anybody who tries. It has been well said that almost the only scoffers at prayer are those who have never tried it enough. तो ये पहले 4 पन्नों में, 4 पैरास में बिल प्रार्थना और ध्यान इसके ऊपर की शुरुआत करता है। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक विकास के 2 प्रमुख साधन हैं, प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना का अर्थ है, आप समझ लीजिए कि ईश्वर से बात करना, आभार प्रकट करना। ध्यान का अर्थ है ईश्वर को सुनना। हम ए के सदस्य अब सक्रिय और जागरूक लोग हैं। वी आर एक्टिव फोक, लिखता है बिल। जीवन की वास्तविकताओं का सामना करते हुए शायद पहली बार सच्चे अर्थों में जीना सीख रहे हैं। पहले हमारा जीवन बहुत ही भ्रमित अवस्था में पीड़ा और आत्मविनाश से भरा हुआ था। अब हम सच्चाई और जिम्मेदारी और सेवा की दिशा में बढ़ रहे हैं, अपने जैसे पीड़ितों को मदद करने के लिए।
इसलिए आश्चर्य नहीं कि हम में से कई लोग गंभीरता से प्रार्थना और ध्यान को कुछ खास आवश्यक नहीं समझते। हमें लगता है कि यह तो किसी आपात स्थिति में मदद आने वाली चीज है, जैसे कोई अंतिम सहारा हो जिसे मुश्किल आने पर याद किया जाए। शुरुआत में हम में से बहुत से लोग प्रार्थना और ध्यान को कोई रहस्यमय कला मानते हैं, जो शायद केवल धर्मगुरु, पादियों या साधुओं के बस की बात है। हमें लगता है कि हम इससे सिर्फ सेकेंड हैंड लाभ ले सकते हैं, जैसे उनकी प्रार्थना से हमें थोड़ी शांति या संभाल मिल जाए। ये यहाँ किसी का मजाक नहीं उड़ाता, न कोई बंधन डालता है। वह यह सच्चाई स्वीकार करता है कि बहुत से लोग आध्यात्मिक जीवन से दूर होकर अनुभवों ने उन्हें ईश्वरीय आध्यात्मिक साधना से अलग कर दिया है। लेकिन ये यह भी कहता है कि जैसे जैसे हम इस यात्रा में बढ़ते हैं, हम अनुभव से जानने लगते हैं कि प्रार्थना और ध्यान के आगे झुकने के विचार से विद्रोह करता है। हम में से कई के पास तर्क भी बड़े मजबूत थे। अपने दिमाग से हम साबित कर चुके थे कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। हम कहते हैं कि अगर सच में ईश्वर है, तो ये दुनिया इतनी क्रूर, अन्यायी और दुखों से भरी क्यों है? इतने हादसे, एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? इतनी बीमारियां, अत्याचार, ये सब किसकी रचना है? ये कौन कर रहा है? फिर उन लोगों का क्या जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में जन्म लेते? बिल यहाँ पे तर्क दे रहा है उन एग्नोस्टिक्स के जो ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इनकार करते हैं, और उस इनकार में वो ये तर्क दे रहे हैं। उनका दुख क्या ईश्वर की योजना का हिस्सा है? ऐसे सवाल उठते हैं। अगर यह सब अन्याय और पीड़ा की दुनिया है, तो इसमें न्याय कहाँ है? और अगर न्याय नहीं है, तो ईश्वर भी नहीं हो सकता। ये तर्क जब मैं ऐसी अवस्था में चला जाता हूं, तभी ये तर्क निकलता है। बिल कहता है कि ये विद्रोही मनोभाव है। करुणा के साथ स्वीकार करना, वो कहता है कि ऐसे प्रश्न मनुष्य की गहरी तर्कशीलता और संवेदनशीलता का संकेत है। परंतु अनुभव से धीरे धीरे ये समझ आ जाती है कि ईश्वर का अस्तित्व किसी तर्क या सिद्धांत से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव से जाना जा सकता है। तो यहाँ इस पैरा में बिल हमें ये समझाता है कि भले ऐसे हजार सवाल हम खड़ा करें, लेकिन ईश्वर को किसी तर्क या सिद्धांत से नहीं, बल्कि हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से जान सकते हैं। जब हम विनम्र होकर भीतर झांकते हैं और अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तभी हमें भीतर से एक ऐसी शक्ति महसूस होती है जो दिशा देती है, और वो शक्ति धीरे धीरे ईश्वर जो मुझे समझ में आया, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। आगे लिखता है कि समटाइम्स यू टुक अ डिफरेंट टैक। कभी कभी हम इस विषय को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते। बिल यहाँ पे एक और पहलू बता रहा है। यहाँ पे वो मुर्गी और अंडे का एक उदाहरण दे रहा है, जिसमें कहते हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। निश्चिंत ही वो लिखता है कि ब्रह्मांड में कोई चीज तो पहले आई होगी। यहाँ पे एटम की बात करता है, तो कुछ ना कुछ तो पहले आया होगा। हम ये मानते हैं कि हम जैसे लोगों के जीवन में कुछ चमत्कार हुए हैं, लेकिन जब बात प्रार्थना और ध्यान की आती है, तो हमारा मन किसी जिद्दी वैज्ञानिक की तरह पीछे हट जाता है। बिल यहाँ पे एक जिद्दी वैज्ञानिक की तुलना देता है, जो डरता है कि कहीं कोई उसका प्रयोग उसके प्रिय सिद्धांत को गलत साबित ना कर दे। यानी कि ईश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये बोलने वाला व्यक्ति वो किसी ऐसे प्रयोग में भी नहीं पड़ना चाहता कि गलती से ऐसा साबित हो गया कि ईश्वर है, तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हम भी शायद ऐसे ही है, बिल कहना चाहता है।
फिर एक दिन हमने प्रयोग करने की ठानी। हमने प्रार्थना और ध्यान को आजमाया। किसी के कहने पे नहीं कहता है, बल्कि इसलिए कि हमें कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। और जब परिणाम सकारात्मक आए, जब भीतर से शांति, दिशा और राहत का अनुभव हुआ, तो हमारी सोच बदल गई। अब हम केवल अलग महसूस नहीं करते थे, बल्कि हमें जानकारी और विश्वास दोनों मिले। अब हम समझ चुकते थे कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव का सत्य है। प्रार्थना पर हंसने वाले लगभग वही लोग होते हैं जिन्होंने उसे कभी पर्याप्त रूप से आजमाया ही नहीं। बिल ने ये पहले जो एग्नोस्टिक्स हैं उनके लिए ये खुलासा लिखा। तो ओवर टू यू पूछें। थैंक यू लकी। मुझे ये पैराग्राफ बहुत आइडेंटिफिकेशन देता है, क्योंकि मैं जब ये अपने आप की तरफ देखता हूँ, मेरे पिताजी बड़े धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। मतलब मैं जिस घर से आता हूँ वो घर में रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिसे कहते हैं कि धार्मिक विधियों के ऊपर काफी जोर हुआ करता था। मेरे दादाजी के घर में तो जो भगवान का जो मंदिर था, उस रूम में बगैर नहाए जाने को अलाउड नहीं रहता था। और उसी को आगे मेरे पिताजी ने उसी ढंग से करने का प्रयास किया। मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता था जब भी थोड़ी थोड़ी अक्ल आने लगी थी। अक्ल लॉजिक की आ रही थी, लेकिन भावनात्मक या भाव जो है वो समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये सोचता था कि ये जो मेरे पिताजी ने बहुत सारा संस्कृत मंत्रों का पठन करके एक एक घंटा वो मंदिर के सामने बैठ के वो पूरा पठन उनका बड़ी ऊंची आवाज में करते थे। मुझे संस्कृत समझ में नहीं आती थी, एक शब्द मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन अब मेरे पिताजी ये इतने दिलो जान से ये कर रहे हैं, वहां पर नहा धो के उस प्रकार से बैठ के वो कर रहे हैं, तो मैं देखता तो था लेकिन समझ नहीं पाता था। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिसे कहते हैं कि धार्मिक प्रथाओं का अमल होते मैंने देखा, लेकिन उसके पीछे का जो मतलब था वो मतलब मैं नहीं समझ पाया था। और बिल डब्ल्यू शायद हमारे जैसे ही लोगों की बात करता है कि हम लोगों को प्रार्थना करते देखते हैं, लेकिन इसका डायरेक्टली फायदा क्या है वो कभी हमने समझा नहीं है। हमारा विश्वास ज्यादा लॉजिक के ऊपर रहा है। और जब ही हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी आए, पूरी तरह से अपना तहस नहस करके, और यहाँ पर बताया कि भाई उच्च शक्ति की संकल्पना दूसरे स्टेप में हमको दी गई कि आप ए के समूह को ही उच्च शक्ति मानकर चलिए। तो वो ठीक है, हमने उतना तड़जोड़ कर लिया कि भाई अगर किसी ना किसी को उच्च शक्ति माननी ही है तो मैं ए के ग्रुप को, ए के प्रोग्राम को, ए की किताब को ही उच्च शक्ति मानकर मैं शुरुआत करता हूँ। ये मेरे समझ में भी आते हैं और ये एक जीने का तरीका भी है, और इतने सारे लोगों का भला हुआ है तो शायद मेरा भी भला हो सकता है। इस विश्वास के साथ मैंने उसकी शुरुआत तो कर दी, क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा था, मेरे को समझ में आ रहा था। लेकिन जहां पर वो धार्मिकता की जो बात चल रही थी, तो मैंने यही देखा था कि जब भी सत्यनारायण की पूजा होती है तो कोई गुरुजी आते हैं, वो संस्कृत में कुछ पठन करते हैं और ऐसा करो, यहाँ पानी डालो, यहाँ ये फूल डालो, यहाँ ये करो, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, और हमने बैठने का, उसको सुनने का, समझने का कुछ नहीं। यही मैंने अनुभव लिया था, और उसके लिए मुझे हमेशा ये रिचुअल्स के बारे में बड़ा मन में संदेह रहता था। मुझे ऐसे लगता था कि ये सब अनावश्यक चीजें हैं। धीरे 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 जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरे अपने पिताजी के साथ में चर्चा शुरू हो गई। मैं हमेशा उनको बोलता था कि ये जो आप करते हो ये मेरे को समझ में नहीं आता, ये 1 घंटा संस्कृत में बोल के आपको ये सब समझ में आता है क्या?
तो बोलते हैं हाँ मैं संस्कृत सीखा हुआ हूँ, मुझे समझ में आता है। तो बोला मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, इसके लिए मुझे इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, तेरे को संस्कृत समझ में नहीं आता तो तू उसका मराठी ट्रांसलेशन पढ़, उससे तेरे को समझ में आएगा। अभी तक मैं खाली ये चीजें गलत है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यही बोलने में मैं आनंद प्राप्त कर रहा था कि ये सब चीजें गड़बड़ी है, ये गलती है, ये किसने कभी 500 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले किसने लिखा होगा और खाली हम लोग बड़बड़ा रहे पंछी के माफिक, पोपट के माफिक, इससे क्या होता है वगैरह वगैरह। तो बोलते नहीं, ये हर चीज में कोई मतलब है, कोई प्रार्थना है, कुछ मांगा हुआ है, कुछ तारीफ की हुई है, वो समझ तो सही तू, मराठी में पढ़। और मैं समझता था कि ये जरूरी क्या है यार, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, अब मैं सोबर भी हूँ, अभी मुझे ये सब चीजों की जरूरत क्या है। मतलब अच्छा चल रहा है, मैं एक ही मीटिंग करता हूँ, शेयरिंग करता हूँ, व्हाट्सएप कॉल्स करता हूँ, यहाँ वहाँ जाता हूँ, किताबें भी पढ़ता हूँ। ये ये भगवान वाला जो किस्सा है, ये इशू है, इसको इतना सीरियसली लेने का क्या कारण हो सकता है। सो बिल कहता है कि हम सभी लोग इसी मानसिक अवस्था में जाते हैं क्योंकि सबसे पहले तो हमने उसको समझा ही नहीं है। और अगर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और अगर हम लोग कोशिश करने का प्रयास करते हैं कि तो समझ में आएगा। अगर तुम कोशिश करो, समझो और फिर भी तुमको मजा नहीं आए तो समझ जाए। सो ही सेज कि जो लोग प्रार्थना को या मेडिटेशन को ना कहते हैं या नाम रखते हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने इसे पूरी तरह से किया नहीं है। अभी धीरे 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 मेरे पिताजी ने ये कहा कि देख, दुनिया भर में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो होशियार है, तेरे से कई गुना होशियार है, लेकिन वो सब ये विषयों का अभ्यास करते हैं और समझ बूझ के करते हैं, तो ये सब पागल तो नहीं हो सकते। तो कम से कम उनको क्या मिला है वो तेरे को समझना है, तो आंखें खुली रख, कान खुले रख, बुद्धि खुली रख और सुनने का तो प्रयास कर, समझने का तो प्रयास कर। तो तब से दोस्तों मैंने शुरुआत कर दिया कि मैं भी प्रार्थना करके देखूंगा, लेकिन मुझे जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में ट्रांसलेशन करके मैं समझूंगा, और फिर मेरे को जो समझ में आता है वो भाषा में मैं उसकी बात करूंगा। अगर मुझे मराठी में बात करना है तो मराठी में बात करूंगा, हिंदी में बात करना है हिंदी में बात करूंगा, इंग्लिश में बात करना है इंग्लिश में बात करूंगा, क्योंकि इट इज अबाउट माई डायलॉग। मुझे अगर बात करनी है, मुझे अगर कुछ मांगना है, मुझे अगर कुछ बोलना है, ये संभाषण है, और ये संभाषण में मैं क्या बोल रहा हूँ ये मुझे ही समझ में नहीं आएगा तो वो संभाषण पूरा कैसे हो सकता है। वहां से शुरुआत हो गई दोस्तों। अभी आगे हम लोग इसको बहुत गहराई से सुनने वाले हैं, तो मैं अभी उधर जाता नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल इतना कह देता हूँ कि परसों दिवाली का लक्ष्मी पूजन था, तो मैं बैठा, मेरी 90 साल की माँ, हमारे घर में जो एक दो जन काम करते हैं, सबको मैंने बिठाया और मैंने वो पूरा जो पाठ था वो मराठी में पढ़ा। उसका कारण क्या है, ये क्यों पूजा करते हैं, इसका हेतु क्या है, इसका भाव क्या है, इससे हमारे अंदर किस प्रकार की शांतता निर्माण हो जाती है, किस प्रकार की प्रसन्नता निर्माण हो जाती है, और वो सभी मैंने वो सब मराठी में पढ़ा और मुझे बड़ा मजा आया। वो पूरा पाठ करने के बाद में मैं तो खुश हुआ ही, लेकिन जो सुनने वाले थे वो सभी खुश हो गए, क्योंकि पहली बार वो सही ढंग से हम सब लोगों ने समझा। द सेम थिंग मेरा ए के भी इसमें, कि मेरा जो प्री एग्जिस्टिंग बायस है कि ये गलत ही है, ये गड़बड़ी है, ये जरूरी नहीं है, तो बिल डब्ल्यू कहता है थोड़ा समय ये बाजू में रख और कोशिश तो करके देख। तो कोशिश करने के बाद में ही समझ में आएगा ना तेरे को कि इस बात में दम है या नहीं है। तो ये जो मन के जो साइंटिफिकली ट्रेंड हमारी माइंड्स है, लॉजिकली ट्रेंड माइंड्स है, ये लॉजिक से फेथ की तरफ लेके जाने के लिए
ये पहले 4 पैराग्राफ्स का इस्तेमाल किया हुआ है BW ने कहते हुए कि भाई पहले कर और फिर बाद में हम लोग बात करते हैं। तो ओवर टू यू लकी। थैंक यू भूषण। पैरा 4 से शुरू करता हूँ, पहले इंग्लिश। Those of us who have come to make regular use of prayer would no more do without it than we would refuse air, food or sunshine. And for the same reason, when we refuse air, light or food, the body suffers. And when we turn away from meditation and prayer, we likewise deprive our minds, our emotions and our intuitions of vitally needed support. As the body can fail its purpose for lack of nourishment, so can the soul. We all need the light of God's reality, the nourishment of His strength, and the atmosphere of His grace. To an amazing extent, the facts of A life confirm this ageless truth. बिल यहाँ चौथे पैरा की शुरुआत में ही उनके लिए, अब पहले 4 पैरा में तो उनके लिए उसने लिखा जो अज्ञेयवादी थे या नास्तिक थे। अब यहाँ बात करता है those who have come to make regular use of prayer, यानी कि जो प्रार्थना को नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं, उसके बिना रहना उतना ही असंभव समझते हैं जैसे कि हवा, भोजन या धूप के बिना जीवन असंभव है। बिल कहता है जैसे शरीर को हवा, रोशनी और भोजन की कमी से तकलीफ होती है, उसी तरह जब हम प्रार्थना और ध्यान से मुंह मोड़ लेते हैं तो हम अपने मन, अपनी भावना और अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को, अपनी आत्मा को वह आवश्यक पोषण छीन लेते हैं। तो यहाँ पर बिल एक गहरी तुलना करता है कि जैसे शरीर को पोषण चाहिए वैसे ही आत्मा को भी चाहिए। अगर शरीर भूख से कमजोर होकर अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता, उसी तरह दुर्बल आत्मा भी, जिसे ईश्वरीय संपर्क करने की ताकत चाहिए, उसके पास ताकत नहीं होती, आत्मा दुर्बल हो जाती है। हम सभी को ईश्वर की सच्चाई का प्रकाश, उनकी शक्ति का पोषण, उनकी कृपा का वातावरण, अपने जीवन में स्थिरता, शांति और अर्थ, ये सारी बातें प्रार्थना व ध्यान से आ सकते हैं। बिल कहता है कि हमारे अनुभव से ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये बार बार प्रमाणित हुआ जीवत सत्य है कि जब हम प्रार्थना और ध्यान से ईश्वर की उपस्थिति से जुड़ते हैं तो हमारी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक शक्ति वैसे ही तरोताजा होती है जैसे शरीर को भोजन से होती है। अगला पैरा, देयर इज अ डायरेक्ट लिंकेज अमंग सेल्फ एग्जामिनेशन, मेडिटेशन एंड प्रेयर। टेकन सेपरेटली, these practices can bring much relief and benefit, but when they are logically related and interwoven, the result is an unshakable foundation for life. Now and then we may be granted a glimpse of that ultimate reality which is God's kingdom, and we will be comforted and assured that our destiny in that realm will be secure for so long as we try, however falteringly, to find and do the will of our Creator. बिल यहाँ पे हमें बहुत ही एक बड़ा गहरा, एक तिलिस्मी चिराग जैसा एक गहरा ज्ञान दे रहा है कि देयर इज अ डायरेक्ट लिंकेज अमंग सेल्फ एग्जामिनेशन, मेडिटेशन एंड प्रेयर, यानी कि आत्म परीक्षण, ध्यान और प्रार्थना, इन चीजों के बीच एक गहरा संबंध है। अगर हम इनका अभ्यास अलग अलग करें तो ये हमें बहुत राहत, शांति और संतुलन दे सकते हैं, लेकिन जब ये तीनों को आपस में जुड़कर एक साथ हमारे हिस्सा का जीवन बनते हैं तो एक अटूट और स्थिर आधार, जिसे बिल कहता है अनशेकेबल फाउंडेशन कहा अंग्रेजी में उसने, बना देते हैं। ऐसा जीवन आधार जिस पर आत्मिक या आध्यात्मिक विकास टिक सकता है, आगे बढ़ सकता है। बिल कहता है कि समय समय पर हमें कभी कभी उस परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी की झलक मिलती है और ईश्वर, गॉड्स किंगडम, यानी कि उसे राम राज्य कह सकते हैं, हम ईश्वर का राज्य कह सकते हैं, गहरी शांति मिल सकती है। जब हम भले ही थोड़ी लड़खड़ाती कोशिशों के साथ ईश्वर की इच्छा को जानने और उसे पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे तो हमारा स्थान, हमारी सुरक्षा और हमारा मार्ग
उस ईश्वरीय राज्य में सुनिश्चित रहेगा। बिल यहाँ पे एक वादा करता है, एक वादे के रूप में हमें लाइन कहता है कि सच्ची प्रार्थना, ध्यान और आत्मा परीक्षण हमें न केवल संयम में रखेंगे, बल्कि हमें धीरे धीरे उस स्थायी शांति और जीवन के उस अर्थ की ओर ले जाएंगे जहां ईश्वर की इच्छा के अनुरूप सब कुछ हो रहा होता है। अगला पैरा, एज वी हैव सीन, सेल्फ सर्चिंग इज द मीन्स बाय विच वी ब्रिंग न्यू विजन। अब यहाँ पे बिल हमें समझा रहा है अलग अलग चीजें, सेल्फ सर्चिंग से शुरू किया है। Bring new vision, action and grace to bear upon the dark and negative sides of our nature. It is a step in the development of that kind of humility that makes it possible for us to receive God's help. Yet, it is only a step. We will want to go further. We will want the good that is in us all, even in the worst of us, to flower and to grow. Most certainly, we shall need bracing air and an abundance of food. But first of all, we shall want sunlight. Nothing much can grow in the dark. Meditation is our step out into the sun. How then shall we meditate? The actual experience of meditation and prayer across the centuries is, of course, immense. The world's libraries and places of worship are a treasure trove for all seekers. It is to be hoped that every age who has a religious connection which emphasizes meditation will return to the practice of that devotion as never before. But what about the rest of us who, less fortunate, don't even know how to begin? Shall I stop here, Pushan? Or one para more? Pushan? यहाँ पर हमको रुकना होगा क्योंकि यहाँ से आगे हम लोग एक्चुअली प्रोसेस में जाते, टेक्निक में जाते प्रोसेस में जाते हैं। तो मैं आखिरी पैरा का वो बिल जो हमें समझा रहा था, वो ऐसा लिखता है कि जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि आत्म परीक्षण यह साधन है जिससे हम अपने स्वभाव के अंधेरे और नकारात्मक हिस्सों पर एक नई दृष्टि डाल सकते हैं और उन पर ईश्वर की कृपा ला सकते हैं। आत्म परीक्षण हमें विनम्रता, ह्यूमिलिटी विकसित करने में मदद करता है, जो हमें ईश्वर की सहायता स्वीकार करने योग्य बनाती है। लेकिन वह केवल एक कदम है, यात्रा का अंत नहीं है। इसके बाद हम स्वाभाविक रूप से यह चाहेंगे कि हमारे भीतर जो अच्छा है, यहाँ तक कि हम में से सबसे बुरे व्यक्ति के भीतर भी जो अच्छाई का बीज है, वह फले फूले और बढ़े। इसके लिए जैसे पौधों को ताजी हवा और भरपूर भोजन चाहिए, वैसे ही हमें भी चाहिए। परंतु सबसे पहले हमें प्रकाश चाहिए, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी नहीं पनपता। ध्यान वह कदम है जिससे हम, यह वह अभ्यास है जो हमारे भीतर के अंधकार से बाहर निकालकर हमें सत्य की तरफ, स्पष्टता और आत्मिक ऊर्जा की ओर ले जाता है। अभी इसके बाद बिल कहता है कि व्यवहारिक प्रश्न उठता है, तो फिर हम ध्यान कैसे करें? ध्यान और प्रार्थना का अनुभव सदियों पुराना है। बिल कहता है कि दुनिया के हर धर्म की पुस्तकालय और सभी मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में असंख्य ज्ञान और विधियां भरी पड़ी है। ये उन पर सभी, मतलब वो जगह पे सारे खजाने हैं, और जो सच्चाई की तलाश में है उनको बहुत कुछ वहां मिलेगा। बिल कहता है कि जिन सदस्यों का किसी धार्मिक परंपरा से संबंध है जहां ध्यान और साधना का अभ्यास होता है, उन्हें चाहिए कि वे उस अभ्यास को नई निष्ठा और समझ के साथ फिर से अपनाएं। लेकिन फिर एक गहरी बात सामने आती है कि हम में से वो लोग क्या करें जो इतने भाग्यशाली नहीं है, जिन्हें यह तक पता नहीं कि ध्यान शुरू कैसे किया जाए। यहीं से एक व्यवहारिक अध्यात्म की ओर जाता हुआ किसी एक विशेष धर्म या पद्धति का नहीं, बल्कि बिल यहाँ पे कहता है कि ऐसे लोग जिन्हें पता ही नहीं कि ध्यान शुरू कैसे किया जाए। बिल यहाँ पे एक अनुभव पर आधारित और सरल अभ्यास की बात करता है, ताकि हर व्यक्ति, चाहे उसका पार्श्वभूमि क्यों ना हो, ईश्वर से जुड़ने का अपना रास्ता पा सके। तो ये जो मैंने 3 पैरा पढ़े हैं, उसमें बिल हमें
प्रार्थना और ध्यान का महत्व, प्रार्थना और ध्यान के फायदे, और अगले कदमों में प्रार्थना और ध्यान के तरीके बताने से पहले का ये उसने पाठ किया है। सो ओवर टू यू पुष्प। तो मुझे ये क्लियरली दिखता है कि हमेशा, मतलब जब भी हम लोग कहते हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, तो जब भी मौका मिलता है बिल ये सेपरेशन बताने का प्रयास करता है कि जो भी हमारा कंफ्यूजन था, मिसअंडरस्टैंडिंग था या रिजेंटमेंट था, वो धार्मिक प्रवृत्तियों के ऊपर था, क्योंकि ना हमने उनको सही ढंग से समझा या जिस प्रकार से लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है समाज में, उसको देखकर हम लोग डिसइल्यूजन हो गए थे, हमको गलत लग रहा था। तो आध्यात्मिकता ये धार्मिकता से अलग है। आध्यात्मिकता ये मन में जो पॉजिटिव थॉट्स, लव, पेशेंस, टॉलरेंस, फेथ, ये सभी जो पॉजिटिव इमोशंस है उनको लेकर बनती है आध्यात्मिकता। और जो आम तौर पर समाज में जो बात किया जाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग होता है धर्म के दरवाजे से, लेकिन हम लोग एए में जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो ढूंढते हैं वो अध्यात्म के मार्ग से, क्योंकि धार्मिक टीचिंग या धार्मिक लर्निंग हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हुए, पश्चाताप करते हुए, जिसके ऊपर, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज हम लोग खड़े हैं, वहां पर हमारे पास में आध्यात्मिकता का एक मजबूत क्या कहते हैं एसेट हमारे पास में है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो करने वाला एक बहुत बढ़िया सा मेरे पढ़ने में, सुनने में कुछ आया था, वो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो कोई भी रिलीजन होती है वो रिलीजन 3 चीजों पे आधारित होती है: सिंबल्स, रिचुअल्स एंड स्टोरीज। सबसे पहले होते हैं सिंबल्स। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदू हो तो आप ओम देखोगे या स्वस्तिक देखोगे, आप मुसलमान हो तो आप शायद चांद तारा देखोगे, आप हिंदू हो तो आप भगवा फ्लैग आपका होगा, आप मुस्लिम हो तो आपका हरा फ्लैग होगा, आप कैथलिक हो तो आपको क्रॉस होगा या सफेद कपड़े से आइडेंटिफाई होगा। सो दीज आर सिंबल्स। ये निशानियां है जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन से धर्म का है। तो धर्म को एक आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है। दूसरा होता है रिचुअल्स। अगर आप हिंदू हो तो आप शायद मंदिर में जाओगे, घंटी बजाओगे, अगरबत्ती जलाओगे, दिया बत्ती करोगे। अगर आप मुसलमान हो तो आप शायद नमाज पढ़ोगे, आप पैरों पे बैठोगे, हाथ पैर धो के आप अंदर जाके बैठोगे। आप अगर कैथलिक हो तो आप क्रॉस की साइन करोगे, आप चर्च में जाके बैठोगे, आप वाइन एंड वेफर लोगे। तो ये सब जो है ये रिचुअल्स है। तो हर धर्म को लोगों को जागृत करने के लिए कि आप धार्मिक स्थल पर आए हुए हो और आपको ईश्वर के साथ बात करने के लिए कुछ रिचुअल्स प्रैक्टिस करने हैं, इस प्रकार का धर्म हमको बताता है और ये धर्म के तरीके से हम लोग वो रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं। और तीसरी है स्टोरीज। तो आप मुस्लिम हो तो आप शायद कुरान की बात कर रहे हो, आप कैथलिक हो तो शायद आप बाइबल की बात कर रहे हो, और आप अगर हिंदू हो तो शायद आप गीता की बात कर रहे हो या रामायण की बात कर रहे हो। ये सभी कहानियां हैं। तो ये सिंबल्स, रिचुअल्स और स्टोरीज के जरिए हमें धर्म बताने का प्रयास करता है कि सत्सद विवेक बुद्धि यानी क्या, या ईश्वर तक पहुंचने के लिए मैंने कौन सा मार्ग अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई एक ही मार्ग नहीं होता है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करो फिर भी आप ईश्वर के करीब हो सकते हो। आपको अगर कोई भी रिचुअल समझ में नहीं आता होगा या कोई भी किताब पढ़ने नहीं आता होगा, फिर भी आप सबसे सात्विक और संत बन सकते हो। ये सभी दुनिया का अनुभव है, क्योंकि धर्म
और अध्यात्म ये दो चीजें अलग है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अध्यात्म की, यानी कि ईश्वर के साथ संभाषण करने की, ईश्वर के करीब जाने की, ईश्वर को समझने का प्रयास करने की, कि मेरे अंदर की अच्छाई, मेरे अंदर की सत्सत विवेक बुद्धि, ये दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी सात्विक है, जो कुछ भी शुद्ध है, उसके साथ में जुड़ने की बिल डब्ल्यू ने एक सिंपल सी मेथोडोलॉजी बताई है। वो कहता है कि प्रार्थना और ध्यान। वो कहता है यहां पर आपको 10वें और 11वें कदम को बिल डब्ल्यू जोड़ते हैं। 10वें में आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, और वो सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ करेक्शन प्यूरिफिकेशन के साथ में ही आपका कम्युनिकेशन, आपके मन की शांतता, और फिर आपके मन से प्रेयर यानी अपील, ये चीजें आपके मन से बाहर आती है। सो बिल डब्ल्यू जानता है कि हम सभी एए के सदस्य हैं जिनका धर्म के साथ ज्यादा, उसमें एक जिक्र वो करता भी है कि जो लोग उस धर्म के हैं जहां पर आपको शायद मेडिटेशन के बारे में बताया, तो अभी आप ये समझने के बाद में ज्यादा तीव्रता के साथ में आप कर पाओगे, या जो जिनको रिलीजियस टीचिंग जिनके पास अच्छा है, वो ज्यादा जानकर गहराई के साथ में प्रार्थना कर पाएंगे। लेकिन ज्यादातर हम लोग वो है जो इस विषय में ना कभी सीखे हैं, ना समझे हैं, ना किसी ने हमको समझाया है, और उसके वजह से हम हमेशा ही अंधेरे में रहे हैं। लेकिन अभी अगर हमको प्रकाशमान जिंदगी में आना है, आध्यात्मिकता से प्रेरित जीवन में आना है, तो हमें कुछ अनुभव लेने हैं। तो अभी ये अनुभव ये कैसे, अभी मैं जिसने कभी कुछ किया नहीं है या समझा नहीं है, सीखा नहीं है, ये कैसे करे? तो आगे चलकर बिल डब्ल्यू हमारे साथ में अभी सिंपल टेक्निक्स शेयर करने वाले हैं कि अगर मुझे मेडिटेशन समझ में नहीं आता है, ये क्या होता है समझ में नहीं आता है, तो क्या करने का, उसके बारे में अभी बिल डब्ल्यू हमारे साथ में बात करने जा रहे हैं। ओवर टू यू लकी। तो अगला पैरा जहां पे बिल हमें बता रहा है कि वेल वी माइट स्टार्ट लाइक दिस, फर्स्ट लेट्स लुक एट अ रियली गुड प्रेयर, वी वोंट हैव far to seek, the great men and women of all religions have left us a wonderful supply. Here let us consider one that is a classic. Its author was a man who for several hundred years now has been rated as a saint. We won't be biased or scared off by that fact, because although he was not an alcoholic, he did, like us, go through the emotional wringer. And as he came out the other side of that painful experience, this prayer was his expression of what he could then see, feel, and wish to become. Prayer. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, and where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, and there where is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved, for it is by self-forgetting that one finds, it is by forgiving that one is forgiven, it is by dying that one awakens to the eternal life. बिल यहाँ पे ये पैराग्राफ में हमें प्रार्थना की ओर नजर ले जाते हुए कहता है कि चलो एक अच्छी प्रार्थना पर, उदाहरण के तौर पर ये प्रार्थना पे नजर डालने की बात करता है। और बिल कहता है कि अच्छी प्रार्थनाओं की खोज करना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि इतिहास में कई महान पुरुष महिलाओं ने हर धर्म में सुंदर प्रार्थनाएं रख छोड़ी हैं। तो यहाँ पे एक क्लासिक प्रार्थना प्रस्तुत करता है बिल, जो मैं अभी अंग्रेजी में पढ़ी। ये शायद सेंट फ्रांसिस का प्रेयर है। बिल उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि कई 100 वर्ष पहले संत के रूप में जाना जाते हैं, और
वो हमारी तरह अल्कोहलिक नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका अपनी भावनात्मक पीड़ा से और संघर्ष का गहरा अनुभव था उनको, जिन्होंने ये प्रार्थना लिखी है। और वो प्रार्थना ऐसी है कि हे प्रभु, अपनी शांति का माध्यम बना, मुझे अपनी शांति का माध्यम बना है। जहाँ घृणा है वहां मैं प्रेम ला सकूं, जहाँ गलती है वहां क्षमा की भावना ला सकूं, जहाँ कलह है वहां मेल मिलाप ला सकूं, जहाँ भूल है वहां सत्य ला सकूं, जहाँ संदेह है वहां विश्वास ला सकूं, जहाँ निराशा है वहां आशा, जहाँ अंधकार है वहां प्रकाश, जहाँ दुख है वहां आनंद। हे प्रभु, मुझे यह आशीर्वाद दे कि मैं संतावना पाने की बजाय दूसरों को संतावना दूं, टू कंफर्ट रादर टू बी कंफर्टेड, समझे जाने की बजाय दूसरों को समझ सकूं, और प्रेम पाने की बजाय प्रेम देने वाला बनूं, क्योंकि स्वयं को भूलने में ही व्यक्ति स्वयं को पाता है, क्षमा करने में ही क्षमा प्राप्त होती है, और मरने में ही वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। आमीन। भूषण, ऑलमोस्ट 10 मिनट बाकी है, तो वुड यू वांट टू स्पीक ऑन दिस? तो जो बिगिनर्स है मेडिटेशन के, देखो ये जो अभी लकी ने जिक्र किया सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी का, वो बिल ने यहाँ पर नहीं किया है। यानी लिटरेचर में ये, अभी बिल कैथलिक था तो उसको कैथलिक की प्रार्थना पता होगी, लेकिन उसने यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं कहा है कि कैथलिक प्रेयर बहुत अच्छी है या सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी की प्रेयर बहुत अच्छी है, आप इसे करो। वो कहता है आप जो धर्म के हो या जो भी आपको समझ में आता है, किसी भी संत महात्मा के वाक्यों को आप देख लो, तो आप उसमें से इस प्रकार की प्रार्थना ले सकते हो। जैसे आप मराठी हो, आपको ज्ञानेश्वरी पता है, तो ज्ञानेश्वरी में वो आता विश्वात्म के देवे जैसी प्रार्थना है, या हर एक जगह पर हर एक जो सात्विक किताब है या धर्म ग्रंथ है, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये प्रार्थना दिखेगी, वेयर बिल टॉक्स अबाउट सेल्फ फॉरगेटिंग। वो यहाँ पर बिल का फोकस जो है कि ये प्रार्थना में कहीं पर भी कुछ भी खुद के लिए नहीं मांगा है। ये जो मैं कह रहा था कि अध्यात्म और धर्म में जो अंतर है, यहाँ अध्यात्म में वो सभी पॉजिटिव्स की बात करता है। यानी वो मांगता है प्रेम, वो मांगता है फॉरगिवनेस, वो मांगता है हार्मनी। यानी मैं, आई शुड बी दी इंस्ट्रूमेंट। अगर अच्छाई दुनिया में है और जहां पीड़ा है, तो जो पीड़ा में से बाहर निकालने वाला है वो ईश्वर। तो ईश्वर खुद आके तो प्रकट नहीं होगा, तो ईश्वर क्या करेगा, मेरे जैसे व्यक्ति के हाथों वहां पर पहुंचेगा। तो वहां पर बिल कहता है कि आप आंख बंद करके बैठो। वो आगे थोड़ा सा है, यहाँ पर लकी ने यहीं पर छोड़ दिया, ये पहले एक पैराग्राफ में छोड़ दिया, क्योंकि ये प्रार्थना को खाली समझना नहीं है, ये प्रार्थना को किस सेटिंग में समझना है, वो उसके बाद वाले पैराग्राफ में आता है। बिल डब्ल्यू वहां पर कहता है कि आप इमेजिन करो, आप शांत बैठे हो, एक जगह पर बैठे हुए हो, आंख बंद करके बैठे हुए हो, और ये भाव समझिए, ये प्रार्थना का भाव समझिए कि जहां पर भी पीड़ा है, भगवान तू मुझे पीड़ा से निकालने का, तू मुझे दूत बना, यूज मी एज द व्हीकल, तेरा मैं दूत बनकर वहां पर पहुंच जाऊं, और जहां पर अशांति है वहां शांतता ले जाऊं, जहां पर झगड़ा है वहां प्यार लेके जाऊं। यानी तेरे अच्छाई का संदेश ह्यूमैनिटी की, पीड़ित ह्यूमैनिटी तक पहुंचाने के लिए जहां जहां संभव है वहां वहां पर तू मेरे जरिए ये संदेशा पहुंचा। उसमें मेरे को तकलीफ होगी या क्या, या मेरा सेक्रीफाइस होगा या क्या, इसका कोई भाव नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मी। ये मेरे बारे में है नहीं, मैं खुद के लिए पैसा, मेरा प्रमोशन, मुझे ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, कुछ मांग ही नहीं रहा हूं। मैं अपने आप का सबसे उच्चतम ध्येय यही मांग रहा हूं कि ईश्वर ने मुझे उसका दूत बनकर लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो ये भाव है, ये प्रार्थना नहीं है। ये पहला जो भाग है, जो स्टेप 11 का हम लोग अभी बात कर रहे हैं,
भले ये प्रार्थना का जिक्र यहाँ पर किया है, लेकिन ये प्रार्थना का जिक्र ये सिर्फ वो भाव के हिसाब से है कि आप मन शांत लेके बैठिए, इमेजिन करिए और इस भाव को मन में लाइए। अपने लिए कुछ मत मांगिए। प्रार्थना के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम लोग मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। तो मेडिटेशन में ये जब ये भाव लूंगा, मैं अगर मेरे मन में ऐसे सोचूंगा कि मैं एक ऐसी शांत जगह पे बैठा हूं और पूरे अध्यात्म के प्रकाश में मैं एकदम नहाकर निकल रहा हूं, और उसमें अगर मेरे मन में इस प्रकार का भाव है जो मैं खुद के लिए कुछ नहीं, कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ सेल्फ, मेरा खुद का कुछ नहीं है, मेरे को भूल कर जब मैं लोगों के कैसे काम आ सकता हूं, इस विचार को, भाव को पकड़कर जब भी मैं एक जगह पर शांत स्थित बैठता हूं, तो वो जो अवस्था है वो अवस्था को बिल कहता है कि उसे मैं मेडिटेशन की अवस्था समझता हूं। तो मेडिटेशन करने का कैसे, किस प्रकार से, किधर, उसके लिए बहुत सारे किताबें हैं। आप कोई भी धर्म के साथ में जाओ और वहां पर आपको मेडिटेशन के टेक्निक्स और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बोलेंगे। वो बोलते हैं वो मैं उनके बारे में नहीं बात करता हूं, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि इस प्रकार से मेडिटेशन, इस भाव से जब भी मैं शांत होकर एक जगह पर बैठता हूं, तो मुझे बड़ा आनंदित और बड़ा प्रसन्न लगता है, और उसे मैं मेडिटेशन का टेक्निक समझता हूं। तो शायद 6 मिनट है, तो मैं लकी को बोलता हूं कि इसके आगे वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ लीजिए, यानी वो इसके सबका कनेक्शन लग जाएगा। श्योर विल डू दैट। सॉरी, मैं वो समय के ध्यान में शायद मेरे से स्किप हो गया। ओके। As beginners in meditation, we might now reread this prayer several times very slowly, savoring every word and trying to take in the deep meaning of each phrase and idea. It will help if we can drop all resistance to what our friend says, for in meditation, debate has no place. We rest quietly with the thoughts of someone who knows, so that he may experience and learn, as though lying upon a sunlit beach. Let us relax and breathe deeply of the spiritual atmosphere with which the grace of this prayer surrounds us. Let us become willing to partake and be strengthened and lifted up by the sheer spiritual power, beauty, and love of which these magnificent words are carriers. Let us look now upon the sea and ponder what its mystery is, and let us lift our eyes to the far horizon, beyond which we shall seek all those wonders still unseen. बिल कहता है कि शांत आप बैठे हुए हो एक बीच के ऊपर, सनलिट बीच के ऊपर, यानी जहां सूर्य प्रकाश से, प्रखर सूर्य प्रकाश में आप एक बीच पे हो, एकदम रिलैक्स में बैठे हुए हो और डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, और वो हर श्वास के साथ में एक आध्यात्मिकता का वातावरण जो है वो आपके पूरा आध्यात्मिक वातावरण में आप तन्मय हो चुके हो, और भगवान का पूरा जो ग्रेस है, उसका जो कृपा है, उसमें आप नहा रहे हो, ऐसी अवस्था है। और ये अवस्था में इतने उदात्त विचार, ये जो प्रार्थना में जो जैसे बताया है, वो उदात्त विचारों से आप प्रेरित हो गए हो, ये आप इमेजिन करो, ये आपके नजर के सामने ये पिक्चर लेके आओ। वो कहते हैं कि वो किसने बोला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसने किसने बोला है वो इसकी अहमियत को समझता है, इसका आदर रखते हुए वो विचारों को आप अपने विचार बनाओ और उनको अपने अंदर समा लो। अब वो इसके आगे वाले पैराग्राफ में बोलता है कि कोई बोलेगा ये क्या नॉनसेंस है, ये क्या प्रैक्टिकल थोड़ी है, ये ऐसे थोड़ी इमेजिनेशन, लेकिन वो कहता है अरे उसका चिंता मत करो। आगे पढ़ लीजिए, ये क्लास वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिए। Okay. Shucks, says somebody. This is nonsense. It isn't practical. When such thoughts break in, we might recall a little ruefully how much store we used to set by imagination as it tried to create reality out of bottles. Yes, we revelled in that sort of thinking, didn't we? And though sober nowadays, don't we often try to do so much the same thinking? Perhaps our trouble was not that we used our imagination. Perhaps the real trouble was our
almost total inability to point imagination towards the right objectives. There's nothing the matter with constructive imagination. All sound achievements rest upon it. After all, no man can build a house until he first envisions a plan for it. Well, meditation is like that too. It helps to envision our spiritual objective before we try to move toward it. So let's get back to that sunlit beach, or to the plains, or to the mountains if you prefer. जैसे दिल कहता है कि वो बीच हो या आपको माउंटेन पसंद है तो माउंटेन का इमेजिनेशन करो, या जो आपको अच्छा लगता होगा उस जगह का इमेजिन करो, लेकिन वातावरण निर्मिति जो है ये अपने मन में करो। और आप अगर बोलोगे कि ये क्या बकवास है, ये ऐसा थोड़ी इमेजिन करके कुछ होता है, बोलना हम वो लोग हैं जिन्होंने शराब के ठेके पे गंदी जगह में बैठकर बड़े बड़े सपने इमेजिन किए हुए थे। तो इमेजिनेशन की ताकत क्या है हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सब कुछ बर्बाद होते हुए भी हम लोग विक्ट्री का और इसका इमेजिनेशन कर रहे थे, प्रोग्रेस का इमेजिनेशन कर रहे थे। तो गड़बड़ ये नहीं है कि हम लोग इमेजिनेशन कर रहे थे, गड़बड़ ये है कि हम पॉजिटिवली इमेजिनेशन नहीं कर रहे थे, कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन नहीं कर रहे थे, हम लोग डिस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन कर रहे थे, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी बेस इमेजिनेशन कर रहे थे। अब वापस आते हैं इस मुद्दे पर। आप शांत बैठो एक जगह पर, डीप ब्रेथ ले लो और इमेजिन करो कि आप ईश्वर की पूरी कृपा में पूरी तरह से नहा रहे हो, और आप ये जो भाव यहाँ पर बताया हुआ है कि आप भगवान के दुनिया के सभी पीड़ाओं को छुटकारा करने के लिए आपको दूध बनाए, ये प्रार्थना आप कर रहे हो, ये भाव को आप अपने मन में ले आओ। दोस्तों 10:29 हुए हैं। जो भी मेरे साथ में लोग बैठे हुए हैं, हम यहाँ से आगे नहीं जाने वाले। जस्ट अपने जहां जहां पर भी बैठे हुए हो शांत बैठ जाओ, अपनी पीठ सीधा करो, अपनी आंख बंद करो, और जैसे बिल डब्ल्यू ने कहा हुआ है वैसा हम लोग अभी पहले डीप ब्रेथ लेते हैं, 3 बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, एकदम गहराई से एक सांस ले लो अंदर, थोड़ा सा होल्ड करिए और छोड़ दीजिए, आंखें बंद रखिए। दूसरी बार ब्रेथ लीजिए, गहराई से और भी गहरा ब्रेथ लीजिए, छोड़ दीजिए, और एक बार तीसरी बार एक गहराई से ब्रेथ लीजिए, छोड़ दीजिए, आंखें बंद रखिए। आप अपनी पसंदीदा जगह पर बैठे हुए हो और पूरी तरह से ईश्वर की कृपा में पूरा एक ब्राइट सनलाइट है। ये सूर्य प्रकाश नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का, ज्ञान का प्रकाश है, और उसके अंदर आप समा रहे हो, पूरी तरह से नह रहे हो। ये आपके सामने इमेजिनेशन करिए, सांस पे कंसंट्रेट करिए, इमेजिनेशन करिए, और ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न है और आपको अपना दूध बनाना चाहता है, और आपके जरिए सभी अच्छाई हर पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपको चुना हुआ है। ये विचार करिए, उस पावन विचार को पकड़ के अपने आप को पवित्र होते हुए अनुभव कीजिए। आप चाहे तो किसी की भी पीड़ा दूर कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी दुखी व्यक्ति को आनंदित कर सकते हैं, आप चाहे तो जहां निराशा है वहां आशा लेकर आ सकते हैं। ये विचार आप करिए। दोबारा एक अंतिम मैं प्रार्थना बोलता हूं। लॉर्ड, मेक मी अ चैनल ऑफ दाई पीस। आपके शांति का मुझे दूध बनाइए। जहां नफरत है वहां मैं प्यार लेकर जा सकूं,
जहां गलत है वहां पर मैं माफी फॉरगिवनेस लेकर जा सकूं। जहां झगड़े हैं वहां समझौता लेकर जा सकूं। जहां गलती है वहां सच्चाई को लेकर जा सकूं। जहां विश्वास नहीं है वहां मैं विश्वास लेकर जा सकूं। जहां आशाहीन है, अंधकार है, वहां मैं आशा की किरण लेकर जा सकूं। और जहां दुख है वहां पर मैं आनंद लेके जा सकूं। भगवान, मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं। मुझे शांत करने के बजाय मुझे तुम इस्तेमाल करो कि मैं दूसरे को, किसी को शांतता पहुंचा सकूं। मुझे लोगों ने समझना चाहिए, ये मेरी मांग नहीं है, बल्कि मैं लोगों को समझ सकूं और उनको प्यार कर सकूं। और मैं जब खुद को भूल जाऊंगा और खुद को भूल सकूंगा, तभी मैं तेरी कृपा को समझ पाऊंगा। जब मैं खुद मर जाऊंगा, अपने आप के अंदर के ईगो को मार डाल सकूंगा, तभी जाके जो चिरंतन तेरी कृपा है उसको मैं समझ सकूंगा। इस प्रार्थना को आप महसूस करिएगा, और ये जो भाव में आप बैठे हुए हो, इसे बिल डब्ल्यू कहता है, ये आपका मेडिटेशन है। दोबारा एक गहरी सांस लीजिएगा और आंखें खोलिएगा। अब रात को सोने के पहले, रोज रात को आपका 10वां कदम होने के बाद में ये प्रार्थना, इस भाव को कुछ 5 मिनट 10 मिनट जितना आपसे होता है उतना करने का प्रयास कीजिएगा, और अपने अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं उसका अनुभव लीजिएगा। बस यहीं पर हम लोग रुकते हैं। 4-5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा। ओवर टू यू। थैंक यू भूषण, थैंक यू भूषण, इट वॉज वंडरफुल। इनफैक्ट जो आप बता रहे थे कि अगर बिल कैथलिक था तो कैथलिक ही लिखेगा, लेकिन ये अध्यात्म की दुनिया, ये जो प्रिंसिपल्स हैं कितने एक जैसे हैं। वी फाइंड लाइफ इन डाइंग, वी फाउंड लाइफ, इसके ऊपर बिल का अपने कबीर जी का एक दोहा याद आ गया, पंजाबी में है, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मर के ही तब पाइए पूर्ण परमानंद। क्या बात यानी कि जिस हम अपने कैरेक्टर को जो हम बना लेते हैं, एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना लेते हैं ऑल पावरफुल, ये उस कैरेक्टर के मरने की ही बात है। लोग उसको जिंदा रखने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और मैं उस कैरेक्टर को मारने में बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो जब भी कैरेक्टर मरेगा, उसकी जब मौत होगी, तो तभी शायद सत्य की प्राप्ति होगी, सच्चे सुख की, आनंद की प्राप्ति होगी। वंडरफुल, अमेजिंग। तो दोस्तों, हम अगले शुक्रवार को फिर जुड़ेंगे। 11वां कदम है, और इस 11वें कदम में अभी तो शुरुआत हुई है, और आगे चल के हमें बहुत सारे बिल की तरफ से मिलने वाले खुलासे, भूषण भाई की शेयरिंग का आनंद मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा, और उम्मीद करता हूं कि हम सभी इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। तो हम मीटिंग प्रार्थना से बंद करते हैं। प्रार्थना हम अंग्रेजी में साथ में कहते हैं। सभी अपना माइक अनम्यूट कर ले जो बोलना चाहते हैं, एक साथ। गॉड गॉड ग्रांट God serenity to to grant us the serenity the to courage accept the things and the courage to start and to change the wisdom things to know the difference. and know the I will difference. not keep coming back. God bless.